Yes, good afternoon. Today discuss about the physical features of India, the third, the physiography division of India, that known as the Peninsular Plateau. So look, so south of the northern plain, south of northern plain is known as the Peninsular Plateau. Yes, look. So just known as Peninsular Plateau. And the plain Peninsular Plateau, do you know? So just the shape of the land is the triangular shape, and bounded by the three side water bodies. Peninsular Plateau is the tableland comfort of the old crystal line, a part of the Gondwana land, igneous and metamorphic rock. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. Breaking, weathering process, and making of the part of the old landmass. The plateau consists the two parts. जिस तरह से हम लोग पे हिमालय रीजन में देखे थे, द रेंज ऑफ हिमालय, और ऑन द बेसिस ऑफ demarcated by the river valley, Himalaya divided into the 4 regions and 3 ranges. You know the first range, Himadri, Himachal and Sivalik. Then next, Punjab Himalaya, Kumaon Himalaya, Nepal Himalaya and Assam Himalaya. So, Gondwana land. So, peninsular plateau has the broadened and shallow the valley, rounded hill. Upland, so upland, tabular land, है ना? Tabular land है. Tabular land. Sapat, so just look at the shape of the land. The tabular upper part is surface, shallow valley, not a valley. So this region, the area is the oldest landmass. Oldest, the land mass. A part of Gondwana land. The two broad division, namely the central highland and the central highland and the triangular shape of land is known as the Deccan Plateau. Peninsular Plateau just divided 2 parts, one central high land and Deccan Plateau. 2 lands. So the part of the peninsular plateau, laying in the north
ऑफ नर्मदा। तो नर्मदा बेसिन, ये देखो ये नर्मदा बेसिन का यहां पर ओरिजिन है, नर्मदा बेसिन और अनदर रिवर तापी। The two rivers are in the central highland. Vindhyan range is bounded by the Vindhyan range, bounded by the Satpura range, the south of the Aravalli hill. अब ये देखो ये अरावली हिल का साउथ पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये बॉन्डेड है विंध्यन विंध्यन रेंज से। तो हम कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का टू पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स है और दूसरा पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है। पेनिनसुलर of the part of the peninsular plateau laying to the north of the Narmada basin. नर्मदा बेसिन जो आप देखो कि मालवा प्लेट्यू को हम लोग कहते हैं द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेट्यू उसका एक दक्कन ट्रैप्स है। मालवा प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड और विंध्यन रेंज is the bonded by the Satpura range of the south of the Aravalli hill. Direction northwest direction. Now further the westward extension the gradually merge with the sandy and rocky desert of Rajasthan. ये जो अरावली का पार्ट देख रहे हो, अरावली जो हिल का पार्ट जो है वो जाके मर्ज कर गया है और द फ्लो ऑफ द रिवर bringing the region, so namely the southwest and the southeast. So two river, one the Chambal and Sindh, Betwa, Ken, ये जितने भी रिवर्स है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से इसका ओरिजिन हुआ है। रिवर चंबल है, रिवर सिंध है और बेतवा। एंड केन इज साउथवेस्ट नियर द इंडिकेशन ऑफ द स्लोप। सो लुक हियर द फिजिकल मैप। सो ये मालवा प्लेट्यू, here the Malwa Plateau, the one river is the Chambal river. देखो वेस्ट ये अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट्स में देखो ये रॉकी एंड सैंडी का रीजन बता रहा है। दूसरा आपका देखो कि ये मालवा प्लेट्यू के साउथ में विंध्यन रेंज है और विंध्यन रेंज के ठीक साउथ में आपका सतपुरा रेंज है, ये रेंज। और यहाँ सतपुरा रेंज से ये आप देखो कि महादेव हिल से जो ये यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं रिवर तापी। ये पेनिनसुलर, ये दक्कन प्लेटू का जो ये रीजन एरिया है, ये रीजन एरिया। तो सेंट्रल हाईलैंड उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद देखें ग्रेट वैली है ना, राजस्थान ये बेतवा is the north southwest to the northwest. So direction southwest, it means the western ghats, the northeast. So central highland का जो शेप है वो वाइडर इन द वेस्ट है और ईस्ट में वो नैरो शेप में है, उसकी कोनिकल बन जाता है। बट ईस्टवर्ड जैसे ईस्ट की ओर बढ़ेंगे प्लेटू के उसका विस्तार बढ़ते जाएगा और इस यहाँ के प्लेटू का जो लोकली नाम है उसको कहते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये दो आपका नाम देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं वेस्टर्न पार्ट, ये रीजन देख रहे हो। ये यहाँ पर जब आ गए
तो यहाँ के ये रीजन एरिया कि बुंदेलखंड और बघेलखंड। फिर इसके ईस्ट वार्ड में जाते हैं तो एक ये आपको देख लो छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट द क्रिस्टल्स लैंड, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, एंड सोर्स ऑफ मिनरल्स, abundance of the minerals, variety of the minerals surface. But peninsular plateau further divided the Ranchi plateau, रामगढ़ प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये एरिया है। नेक्स्ट, मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड the extension drained by the river Damodar. That you know the Damodar river वहां से इसका विश्व एक्सटेंशन है। बट द Deccan Plateau, द शेप कैसा है? शेप ये देख लो कि शेप देखो, क्योंकि ये प्लेट्यू का ये जस्ट द ट्रेंगुलर लैंड मास, ये ट्रेंगुलर लैंड मास है, ये ट्रेंगुलर लैंड मास है। इन द साउथ कौन सा होगा? ये साउथ में रिवर कौन सा रिवर है? तो नर्मदा रिवर और इसके सतपुरा रेंज जहां पर ब्रॉड फेल्ट कितना है। तो वाइल द महादेव या कैमूर, कैमूर है, महादेव हिल एंड द मैकाल रेंज ऑफ द ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये इस तरफ से इन छोटा नागपुर प्लेट्यू पर में यहाँ पर देखो कैमूर हिल है, महादेव हिल है, ये ईस्ट की ओर फैलते हैं। और यहाँ पर जैसे ईस्टर्न जाओ तो देखोगे तीन मेघालय के पास गारो, खासी और ये जैंतिया, ये इसके एक्सटेंशन पार्ट्स है, प्लेट्यू का एक्सटेंशन पार्ट है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बट कहता है कि यू नो द स्लोप, अब यहाँ का स्लोप कैसा है? तो जेंटिल स्लोप है और प्लेट्यू ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। सो नेमली महादेव क्या है? मेघालय, ये मैंने बताया हुए मेघालय, ये रीजन एरिया देख रहे हो, ये रीजन, लुक एट द मैप, देखो ये रीजन एरिया आप मैं देखा रहा हूँ कि ये देखो ये रीजन एरिया, ये रीजन एरिया आप देख रहे हो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट्स, ये देख रहे हो ना, ये तीन हिल स्टेशन देख रहे हो, ये 3 हिल स्टेशन है, 1 2 3 हिल स्टेशन, और ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब यहां से ईस्ट वार्ड की ओर एक्सटेंशन हो रहा है, ईस्ट वार्ड की ओर ये एक्सटेंशन, ईस्ट वार्ड की ओर एक्सटेंशन होते जा रहा है। ठीक है, ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन हो। अब इसका कहते कि एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, ये जिसका जो एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द दिस प्लेट्यू, ये प्लेट्यू, एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। सो नेम, लोकली नेम क्या है इसका? तो लोकली नेम जो है मेघालय कार्बी एंग्लो प्लेट्यू इन द नॉर्थ एचएल्स हिल्स। बट ये फॉल्ट हमने बताया था कि देखो कि 3 मूवमेंट हुआ था। पहला मूवमेंट था आपको फॉल्ट, फोल्ड और वॉल्केनिक। ये देखो इसको हम लोग कहते हैं कि फॉल्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड दूसरा आप देखेंगे कि ये फोल्ड है, हिमालय का रीजन एरिया है। और तीसरा है कि ये वी शेप एरिया है। तो फोल्ड है, फॉल्ट है। फॉल्ट माने कि दोनों साइड से इसका एक्सटेंशन
बढ़ते चला गया, दोनों साइड से एक्सटेंशन आपका बढ़ते गया। और सेपरेट बाय द फॉल्ट, जब उससे अलग हुआ तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इसके थ्री थ्री प्रोमिनेंट इसके आपका हिल है। कौन सा हिल है आप देखोगे, ये एरिया आपका गारो, खासी और जैंतिया। कहा गारो, खासी, जैंतिया, तो ये गारो, खासी, जैंतिया, ये देखो गारो, खासी और जैंतिया। द थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में है आपको गारो, सेंट्रल में है खासी और ये है जैंतिया, जैंतिया हिल, वेस्ट टू हिल। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ, ये एक्सटेंशन ऑफ, अब ये देख रहे हो ये बोथ साइड, एक तरफ आप ईस्टर्न साइड में देखते हो कि इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट, है ना। तो पेनिनसुला में टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, दोनों का शेप देखो, इसका ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का ये स्ट्रिप स्लोप देख रहे हो, है ना। स्ट्रिप स्लोप कहां से है, तो रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ से लेके ये आप सीधे आ जाओ केरला तक। स्ट्रिप स्ट्रिप स्लोप, ये स्ट्रिप स्लोप देख लो, ये स्ट्रिप स्लोप लाई इन द वेस्टर्न कोस्ट। और ये आपका ईस्टर्न ईस्टर्न घाट का जो स्लोप देख रहे हो, ये आपका स्लोप ईस्टर्न घाट का, ये आपका देख रहे हो कि ये जेंटिल स्लोप है। दोनों का स्लोप में देखो, दोनों का ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप का ईस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न स्लोप। द वेस्टर्न घाट, the western ghat and eastern ghat both mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau, and east western ghat lie in the parallel to the west coast, ये parallel to the west coast नजर देखो कि ये वेस्टर्न घाट का जो है, ये वेस्टर्न घाट का जो पैरेलल टू द किसका है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का। और वेस्टर्न घाट लाइक पैरेलल द वेस्टर्न कोस्ट एंड द कंटिन्यूअस, ये देख रहे हो ना कि ये कंटिन्यूअस कैन डू क्रॉस थ्रू द पास, पास यू नो। अब यहां पर पास नजर आ रहा है, ये पास तो 1 1 2 and 3 पास। सो नेम द पास है ताल घाट, भोर घाट और ये है आपका पाल घाट। थाल, भोर एंड पाल घाट, इन ये आपका थ्री द नेचुरल, जिसको हम लोग कोंकण रेंज भी कहते हैं, इसको हम लोग कोंकण रेंज भी कहते हैं। यहाँ का जो से स्ट्रक्चर है वो काफी अनडुलेटिंग है। वेस्टर्न घाट, अब वेस्टर्न घाट का जो हायर देन द ईस्टर्न घाट नेचुरली है। द एवरेज हाइट इसका देखो कि 900 से लेके 1600 मीटर अगेंस्ट द 6600 मीटर इन द ईस्ट, इसके बराबर में। क्योंकि ये स्ट्रीप स्लोप है इसलिए इसकी अल्टीट्यूड देखो घाट का, ये जो है डिसकंटिन्यू है, टूटा फूटा है, टेढ़ा मेढ़ा है, जिसके कारण आपका यहाँ पर थ्री पासेज नजर आता है कि पहला पास है जिसको हम लोग कहते हैं थाल घाट, दूसरा पाल घाट और तीसरा भोर घाट। मगर इसका जो हाइट देख रहे हैं कि ये आपका 900 से लेके 1060 मीटर इन कंपेरिजन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स देते हैं।
फ्रॉम द महानदी वैली टू द महानदी वैली। अब देखो महानदी, ये यहां देखते हो कि ये आपका महानदी, ये महानदी वैली से लेके नीलगिरी, नीलगिरी हिल, ये नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल तक इसका एक्सटेंशन है। बट ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ऑल्सो, मतलब ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू, देख रहे हो कि ये ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यू है, एक यहाँ पर नजर आ रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ डिसकंटिन्यूड है। क्यों है? ड्यू टू द ड्रेनिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अब ये रीजन एरिया, ये रीजन एरिया देखो बे ऑफ बंगाल का, ये आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है ना। द वेस्टर्न घाट, यहाँ पर देखो ये वेस्टर्न घाट के इस जगह पर जो अब यहाँ है, चूंकि ड्यू टू इधर इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर के पास यहाँ से, सो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इक्वेटोरियल रीजन एरिया, ये देखोगे इक्वेटोरियल रीजन एरिया है। जैसे यहाँ से वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से जो मॉइस्चर, लोडेड मॉइस्चर जो है तो इक्वेटोरियल है, उसका मूवमेंट क्या है? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जैसे यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो टू ब्रांचेस निकलता है, एक अरेबियन ब्रांच हो गया और दूसरा ये बे ऑफ बंगाल है। जैसे ही अरेबियन ब्रांच यहाँ पर आके स्ट्राइक करता है द लोअर वोर कहाँ, तो पाल घाट के पास जैसे ही स्ट्राइक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रेनफॉल होता है, जिस रेनफॉल का नाम है उसको ओरोग्राफिक, द वेस्टर्न घाट कॉज द ओरोग्राफिक रेन बाय द फेसिंग द रेन बियरिंग moist wind to rise along the western slope। अब यहाँ पर चूंकि ये देखो कि वेस्टर्न स्लोप है ये, मगर वेस्टर्न स्लोप की तरफ नहीं जाके ये इस जगह पर आपका सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है ना। बट वेस्टर्न घाट को डिफरेंट लोकल नाम से भी जाने जाते हैं प्रोसेबली इंक्रीजेज इन द नॉर्थ टू द साउथ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड, अब इस एरिया का जो सबसे ऊंचा पीक है इसका नाम है आपको अनाईमुडी, जो 2695 meters, and the second highest peak in the western ghat, the Doda Beta, 2637 meters, and another महेंद्रगिरी। अब यहाँ देखोगे ये रीजन एरिया आ जाइए, ईस्टर्न घाट के महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी का हाईएस्ट पीक जो है वो 1501 मीटर है, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट। एंड अनदर the hills located on the southwest, so eastern ghat locate the famous hill। अब देखो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो, ये कर्नाटका, केरला और ये तमिलनाडु, ये बॉर्डर जो है नीलगिरी हिल के पास देखोगे ऊटी है, जिसको हम लोग द उडा का मंडप कहते हैं और उडा कुनाल कहते हैं। सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ये डिसकंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है। यहाँ का जो है ये पैरेलल, वेस्टर्न घाट पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, कहाँ से? तो ये रन ऑफ कच्छ से लेके आपको केरला तक है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इस वेस्टर्न कोस्ट के, वेस्टर्न कोस्ट के। और ये स्ट्रीप स्लोप है, डाउनवर्ड कटिंग, डाउनवर्ड कटिंग, डाउनवर्ड कटिंग है, और डिसकंटिन्यू द फीचर्स है, डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यू फीचर्स, इसके कारण आपको है ना, जिसके कारण आपको ये देखें। सो इसके हाईएस्ट पीक, डू यू नो द नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक? वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक आप बता सकते हो? अनाईमुडी है। और दूसरा यहां देखो ये रीजन एरिया,
ये रीजन है, ये देखो यहाँ पर अनाईमुडी जो 2600 और 95 मीटर्स एबव द सी लेवल, ये सी लेवल है। दूसरा ये देखो, ये ये हिल है, काराकोरम हिल, ये रीजन है जिसको हम लोग ट्रेंगुलर कहते हैं। और यू नो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के का जो ये रिवर जिसको हम लोग कहते हैं, ऑल द रिवर्स का ओरिजिन आपको वेस्टर्न घाट से है, चाहे वो कृष्णा हो, कावेरी हो, हाँ, महानदी हो, और कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी, ये गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये सारा रिवर जो है वे इस वेस्टर्न घाट से रन करता है और जाके यहाँ पर लोग डेल्टा बनाता है। ये देखो, ये डेल्टा ट्रेंगुलर डेल्टा है, चाहे वो गोदावरी का डेल्टा हो, यहाँ देखो महानदी का डेल्टा है, और यहाँ कावेरी का डेल्टा है। डेल्टा इज द ट्रेंगुलर, ये ट्रेंगुलर लैंड, डेल्टा इज द वेरी फर्टाइल लैंड मास है। One of the features of the peninsular plateau of the black soil area, अब देखो ये रीजन एरिया, ये रीजन एरिया आप देख लो कि साउथ ऑफ द सतपुरा, यहाँ पर देखो ये रीजन एरिया है, साउथ ऑफ द सतपुरा, सतपुरा रेंज और विंध्यन रेंज के पास जो है कि ब्लैक सॉइल एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि लाई वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात का जो रीजन देख रहे हो, इस एरिया को हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। चूंकि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ वॉल्केनिक ओरिजिन, द रॉक आर इग्नियस है। एक्चुअली these rocks have the denudated over the time and the responsible for the formation of the black soil. And Aravalli Hill lies the western and northeastern margin. Northwestern and western margin is the peninsular. So the hill are formed the broken hill, so extension the Gujarat to the Delhi in southwest and northeast direction, southwest and the north direction. So ये अभिज्ञान 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 now discuss about physical features of India के 3-1 रिकॉल करते हैं। 1 आप देख रहे हो कि द हिमालय रिवर और को हम लोग जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन कहते हैं, जिसका स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है। द माउंटेन रेंज रन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र। So Himalaya also represent the lofted mountain, one of the most the Raj mountain है ना, बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका प्रहरीत कहते हैं कि ये अगर हिमालय सपोज करो, अगर हिमालय नहीं रहता तो हमारे यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं वो क्लाइमेटिकल कंडीशन ठीक नहीं रहता। तो मेन पॉइंट क्या है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज द टेबुलर लैंड composed of the old crystals, okay, the and plateau and black और black soil, ये एरिया देखते हैं हम लोग।
ये रीजन ब्लैक स्वेल एरिया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नोन एज द दक्कन ट्रैप कहते हैं, बट इट इज फाउंड, तो ओल्ड क्रिस्टल्स, यहां पर जो रॉक देखते हो वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है। तब और इसकी फॉर्मेशन जो है द ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड and making the part of the oldest landmass, peninsular plateau. But the broad and shallow valley and rounded hill have consist the two division, पहला है central highland और second है आपका Deccan plateau. So features of peninsular plateau in the Black Swell area is also known as the Deccan Trap. So these trap areas formed due to the volcanic origin and rock known as the igneous. The whole Deccan Trap lies in the tropical zone and it received the moderate rainfall. No, and Deccan Trap is formed by the lava soil, इसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेड सॉइल. इट्स सॉइल इज वेरी फर्टाइल and useful for cultivation of crop. The Narmada, the flowing from the east to west and divided the peninsular plateau in the two parts. So ये देखो, ये नर्मदा रिवर जो डिवाइड किया इन पेनिसुलर पार्ट दो भाग में. फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड, a part of the peninsular plateau laying the north of the नर्मदा. ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा का ये पोर्शन देखते हैं, ये वाली पोर्शन जो देख रहे हो ये नर्मदा का. ये वाला पोर्शन है ना, नॉर्थ नर्मदा, ऑल्सो कवरिंग द मेजर एरिया किसका, तो मालवा प्लेट्यू का. ये मालवा प्लेट्यू के एरिया को कवर करता है और मालवा प्लेट्यू को ये हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड. बट द सेंट्रल हाईलैंड इज बॉन्डेड बाय द विंध्यन रेंज. ये देखो ये विंध्यन रेंज बॉन्डेड बाय द, ये विंध्यन रेंज से हम लोग देखते हैं, ये विंध्यन रेंज करते हैं, एंड अरावली हिल. सेंट्रल हाईलैंड वाइडर इन द वेस्ट है, वेस्ट की तरफ थोड़ा सा फैला हुआ है, और ईस्ट की तरफ देखोगे थोड़ा सा ये नैरो नजर आ रहा है, मगर फिर इसका एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है, ये एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है. एक्सटेंशन जैसे बढ़ा तो आपको ये ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन और छोटा नागपुर प्लेटू, ये ईस्ट वार्ड में छोटा नागपुर प्लेटू. अगर पूछा जाएगा आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, तो आप क्या लिखोगे? The light parallel to the western coast, they are the continuous and can be the cross by the passage only Thal Ghat, Pal Ghat and Bhor Ghat. These average elevation of the 900 to 1600 meters. In comparison, the Eastern Ghat the 600 meters. So Eastern Ghat stretches from the Mahanadi Valley to Nilgiri in the south, and Eastern Ghat and the discontinued and irregular and the discussed by the river drainage in the Bay of Bengal. Okay, thank you. Any more question?